बोलो भाई, बोल स्माइल। अच्छा हाँ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ डायग्राम ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो, दो चार्जेस देते हैं, so our force is given है, तो ये साफ कह रहा है कि ये अट्रैक्शन है ना। तो अट्रैक्शन का मतलब की हो गया कि दोनों चार्जेस दे प्रोडक्ट ऑपोजिट चार्जेस होने हैं ना, नेगेटिव होने। लेस देन जीरो मींस नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव। तो अगर यही दो फोर्सेस ऑपोजिट होंगी तो रिपल्शन हो जानी सी, फिर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाना। बोल। The electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r from its center is V. Then the potential at a point at the same distance on its equatorial line will be. हाँ पता लग गया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁੱਤ, एक्सियल लाइन ते पोटेंशियल डाइपोल दा जीरो होता है ना, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन ते की होती है, इक्वेटोरियल नालों डबल होती है, सेम डिस्टेंस। हाँ ते पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन ते जीरो होता है। ये रिजल्ट्स है, याद रखने पैने अपन। बोल कीर्ति। A square sheet of side A is lying parallel to XY plane at z equals to A. The electric field in the region is equals to C z square K cap. The electric flux through the sheet is. हाँ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। दूसरा ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, मतलब वो सरफेस ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥਰਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਡਾਟ A ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। क्यों? क्योंकि एक तो इलैक्ट्रिक फील्ड जेड़ा वा वो पता वा, एक एरिया वेक्टर नहीं पता पर पता लग जाना, कारण कि एरिया वेक्टर दो हिस्से है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होने करके ए स्क्वायर है, CZ square हाँ वो इलैक्ट्रिक फील्ड का मतलब साइड A साइड ए है। ते क्योंकि केड़े प्लेन चलाई कर रहे हैं, XY. तो इसका मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन z एक्सिस वाला है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी CZ square K. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ k ਡਾਟ k 1 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ c z ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ z ਕਿੰਨਾ ਵਾ, a ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब तो साडा आंसर सी आ जाओ। सो अब बन गया। उत्तरा
ठीक है, बोल सिमरन। For a point charge, the graph between electric field or various distance is given by आगे graph। हाँ ਹੁਣ ਆ देखियो ग्राफ प्लॉट करने ਨੂੰ उसने कहता ਤੁਹਾਨੂੰ तो between distance ਤੇ intensity है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किने पैदा किया? पॉइंट चार्ज ने। सो पॉइंट चार्ज दा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डिस्टेंस दे नाल, सो ਇਹਦਾ मतलब ये ग्राफ ठीक है। बोल सुनाएगा। Newton expression for the potential energy of two charges Q1 and Q2 and R1 and R2 in a uniform electric field। हाँ ना देखो ध्यान दियो, समझना पुत्र गल ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰजेस ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ इंटरेक्शन फोर्स। हुण अगर ये कल्ले दो चार्जेस है और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस की कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इन्हां दी पोटेंशियल एनर्जी नूं आपां बोलांगे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उहदा फार्मूला असीं लिख देना वा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। और R ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਣਾ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ R1, और दूसरे चार्ज जिस जगह से ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ R2, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡ R1 R2 ਜਾਂ R2 R1 ਇਹ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਨਸਰ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰजेस ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੋ ਚਾਰजेस ਆ ਗਏ। ਹੁਣ पोटेंशियल एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰजेस ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ प्लस पहला चार्ज एक्सटर्नल फील्ड नाल भी इंटरैक्ट कर रहा है। अच्छा हुण फील्ड की खासियत की हुंदी है समझो, इलैक्ट्रिक फील्ड होए तो इहदी खासियत यह है कि इस फील्ड की है बेसिकली कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स है, स्पेस है। तो हर पॉइंट दे नाल असी फील्ड दे अंदर एक तो टर्म जोड़ते हैं इंटेंसिटी, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूजी पोटेंशियल। तो
Q1 ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ V, मतलब इतना लिखने वाला भी ये वो पोटेंशियल है जेड़ा A जगह पे है, और आ पोटेंशियल तो आ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नाल भी इंटरेक्ट कर रहा, आपस तक आ ही रहे सीगे। तो जदों चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो असी पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं Q इंटू V। सो इसका मतलब Q V R1 प्लस क्यू वी आगे। सो ए पोटेंशियल ए पॉइंट का वा, ए पोटेंशियल बी का। तो इनू 1 2 भी कर सकते हो तुसी, वो कोई गल नहीं, जितना करना इतना, पर डायग्राम बना लेना ताकि उन्हें पता हो भी कहना की चाह रहा लिखिया की है ना। तो ये एक्सप्रेशन बन जाए। और जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इधर न्यूमेरिकल कितना, ਇਹਦਾ मतलब ये सिर्फ यही आंसर नहीं रखना, गल की समझनी है कि मान लो मैनू कल नू पेपर च दो चार्जेस दिते होण, उन्हां च दूरी दिती होए, कवे पोटेंशियल एनर्जी कटो, ਇਹਦਾ मतलब Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ते जे मान लो मैनू चार्ज भी दिता होए और वो चार्ज जिस जगह ते लाई कर रहा उस जगह का पोटेंशियल भी दिता होए, तो पोटेंशियल एनर्जी QV तो आ जानी। तो इतना गल्लां याद रखिए। नेक्स्ट बोलो। The speed acquired by a free electron when accelerated from rest through a potential difference of 100 volt is। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस चों जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल लंघेगा तो जिन्नी ओदी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी QV, वो कादे कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी च, हाफ mv²। सो इसका मतलब इत्थे केड़ा फार्मूला लगना, हाफ mv² इज इक्वल टू QV। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बेस्ड ये कंसेप्ट है। तो हाफ mv² इज इक्वल टू कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो स्मॉल v वेलोसिटी है, m इलेक्ट्रॉन दा मास है, q चार्ज है। ठीक है, बोल धनिष्का। A uniform electric field of 100 Newton per coulomb exists in vertically upward direction. The decrease in electric potential as one goes up through a height of 5 centimeters is। याद आया कुछ?
इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस करना, पोटेंशियल डिफरेंस ही करना, चेंज इन पोटेंशियल करना, डिक्रीज चेंज। फार्मूला केड़ा सोच सकते हैं, E is equal to minus dV by dr। तो चेंज इन पोटेंशियल आ गया, इस फार्मूला च E और dr सेम डायरेक्शन होंगी है। ਹੁਣ E ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, dr डिस्टेंस है वो भी ਦਿੱਤਾ मीटर च के सेंटीमीटर। तो जद कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसा ही ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ सेंटीमीटर ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, मीटर बना लो। ठीक है, बोल भी कीर्ति। Figure shows the variation of electric potential V with 1 by R, where R is the distance from two charges Q1 and Q2. Determine signs of two charges Q1 and Q2. Second, which of the two charges has larger magnitude? बना देखियो पुत्र, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, Q by R। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ V ਤੇ R ਚ, ਫਿਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਬਣਨਾ। R ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ V ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ V और 1 by R च, फिर वो की बनना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y is equal to mx plus c। मतलब V R दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट V 1 by R दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गल्लां नूं पढ़ना आना चाहिए। सो ग्राफ की बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा हुण बेटा इनू असीं पता की कहने हैं, स्लोप। हुण क्योंकि Q पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी। ਇਹਦਾ मतलब की है भी ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ग्राफ है ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ Q पॉजिटिवली आएगा ਤੇ ਆ Q नेगेटिवली आएगा, पहली गल। अच्छा हुण स्लोप की गल आ गई। दूजी गल, आ वाला ਜਿਹੜਾ एंगल है इत्थों पता लगेगी स्लोप। तो ਇਹਦੇ ਲਈ स्लोप आ वाला थीटा तो निकलनी है, ਇਹਦੇ ਵੀ स्लोप इत्थों निकलनी है ना। तो हुण ਜਿਹਦੀ स्लोप ज्यादा वा, मतलब ਜਿਹਦੇ केस च आ वाला एंगल ज्यादा नजर आ रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ नजर आ रहा ਹੁਣ, ਉਹਦੀ स्लोप ज्यादा। ਕਿਹੜੀ स्लोप, आ वाली ज्यादा कि आ वाली, आ वाली ज्यादा। ਇਹਦਾ मतलब Q2 मैग्नीट्यूड च ज्यादा हो, क्योंकि आ स्लोप है ना।
सिमरन। Figure 2Q11A and 2Q11B shows the field lines of a single positive and negative charges respectively. A. Give the sign of potential difference Vp minus Vq and Vb minus Va. B. Give the sign of potential energy difference of a small negative charges between the point Q1, P, A and B. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਹਨਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ डायरेक्शन है। बेसिकली द टेंजेंट तो आंदी है, ये स्ट्रेट लाइंस है ना। और एक गल बड़ी क्लियर है, जिस तरफ इंटेंसिटी हुंदी है ना, इंटेंसिटी दी डायरेक्शन की हुंदी है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। सो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा भी ਕਿਹੜਾ पॉइंट हायर पोटेंशियल ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ लोअर ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ पोटेंशियल कितने ज्यादा कितने घट, पता लग जू। पहले वाले में 2 पॉइंट है ना। दूसरे केस की लभना सी आपां Sign of potential energy difference of a small negative charges. हाँ। तो इनिशियल पहली डायग्राम च इनिशियल पॉइंट केड़ा वा है? दिखाओ मैं डायग्राम तो फिर मैंने आ देखो बेटा, आ पहली डायग्राम है पी क्यू है, और आ दूसरी डायग्राम है बी और ए। क्यू एंड पी तो क्यू एंड पी दे विच आपां एनर्जी डिफरेंस दसना, और नीचे वाले च ए एंड बी। तो आज दे अकॉर्डिंग है ना। हुण जेड़ा चार्ज है देखो इधर पुत, तो ए इदा बन जाना क्यू इंटू वी क्यू माइनस वीपी, अब आ जाना क्यू इंटू वी ए माइनस वी। हुण थानू पता आ टर्म जेड़ी है, तो आ लोअर पोटेंशियल है, आहा तो ए हो गई, और जब की आ भी की है आ टर्म पॉजिटिव, ठीक है। ये 5 पार्ट्स है ना। अच्छा सी पार्ट की लपना work done by the field ऊपर line चार्ज पॉजिटिव sign. केड़ा आ चार्ज नहीं है, जेड़ा चार्ज शिफ्ट हो रहा है सी बोलो। Give the sign of work done by the field in moving small positive
from Q from Q to to P. P. तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ C ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਲੱਸ 1 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ work done by conservative force minus delta U होना ठीक है मतलब ये सिर्फ इसे दे लेनी हर प्रॉब्लम भी दस रहा तुहानू कि इत्थे कंजरवेटिव फोर्स कौन है इलैक्ट्रिक फोर्स है ठीक है जे तो क्या होंगे ना वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फोर्स कड्डो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ फाइनल माइनस मतलब आता पर उन्हें की क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमेशा ऑपोजिट होना तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का मतलब माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मतलब मींस ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ Q ਤੇ ਸੀ ਤੇ P ਵੱਲ ਜਾਣਾ P ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ और ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹ Q ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ Vp ਮਾਈਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿव external agency moving a small negative charge from B to A. फिर वही का from B to A. A तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ फाइनल माइनस B to A ये फाइनल हो गया ना तो आ नेगेटिव है आ ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव है ये भी है ओके है Does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? नेगेटिव चार्ज B तो A वाले जा रहा है
ਹੁਣ सोचो पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट्स च ज्यादा किथे है बी ते ज्यादा वा जिथे पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी कहता बी ते पोटेंशियल ज्यादा वा तो पोटेंशियल ज्यादा वा पर चार्ज नेगेटिव है ਇਹਦਾ मतलब इथे पोटेंशियल एनर्जी घट है ज्यादा नेगेटिव हो जानी ना और ਇਹਦਾ मतलब इधर जानते पोटेंशियल एनर्जी हाँ इंक्रीज की ते काइनेटिक एनर्जी नु डिक्रीज होना पैना और वैसे ही सोच लो कि नेगेटिव चार्ज जदों इस नेगेटिव के नेड़े जाएगा तो उन्हें रिपेल करके स्लो करेगा उस एंगल तो भी सोचा जा सकता क्वेश्चंस हो गए बोल गिनती में 10 Assume that electric field E vector equals to 30x square I cap exists in space, then the potential difference VA minus V naught, where V naught is the potential at the origin and VA the potential at x equals to 2 meter is. हाँ ਹੁਣ देखो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ਤੇ पोटेंशियल डिफरेंस ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ पोटेंशियल ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ E is equal to minus dV by dr ਪਰ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ E is equal to minus dV by dx ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਤੇ dV ਆ ਜਾਣਾ तो इंटीग्रेट जो ਅਸੀਂ करना है देखो एक पॉइंट है ओरिजिन जिथे x 0 है और उत्थे दा पोटेंशियल है v नॉट और दूसरा पॉइंट है जिथे x 2 है उत्थे दा पोटेंशियल है v a तो लेफ्ट साइड का होगी ਤੁਹਾਡੀ VA V naught राइट साइड ਚ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30x square I कैप का मतलब होता है डायरेक्शन ही है ना तो बेसिकली या डॉट प्रोडक्ट तो होना ना तो x स्क्वायर नु इंटीग्रेट करो तो x क्यूब बाय 3 ठीक है बोल्स मारा In a circuit shown in figure, the total charge is 750 microcoulomb and the voltage across capacitor C2 is 20 volt. Then the charge on capacitor C2 is. डायग्राम देती है ना पहला डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट कर लो फिर सॉल्व करने में
ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖ, ਚਾਰਜ ਔਨ ਕਪੈਸਿਟਰ C2 ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਹੀ ਹੈ टोटल चार्ज ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? बैटरी ने। वो टोटल चार्ज इत्थे पहुंचना और उतों फिर दो हिस्सों च वंडिया जाना, मतलब Q2 प्लस Q3 है, समझ होनी चाहिए। हुण आ चार्ज आप कढ़ सकते कितना, क्योंकि आ दोनों तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम, तो 8 माइक्रोफैरेड इंटू 20, तो Q3 निकल आया। आ दिता सी Q, तो जो Q2 पता लग गया, C2 लग सकता पता? है Q2 ही निकालना, C2 भी निकल आएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, आ वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के ये नाल ऐड कर दो, जो मर्जी करी जाओ। एनर्जी स्टोर भी कर सकते हो। कितना टाइम हुआ? 10 मिनट बोल रोहानी। Two wires of same material have length L and 2L and cross-sectional area 4A and A respectively. The ratio of the specific resistance would be कितना कटोगे? केड़ा फार्मूला लगू?
ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ नहीं लगती इसमें। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ Same, same. तो फिर L 1:1 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ बोल निष्का In the given circuit, the current I is diagram. हाँ हम देखो सोच के देखो की कोई कितना कट सकते हैं आंसर केड़ा किरचॉस लॉ तो निकल आना बना सकते लूप लो सो आ देखो पहली गल आ जड़ा जंक्शन है आप नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जंक्शन एफ के ऊपर तीन करंट्स है I3 I1 I2 तो I3 के बराबर हो गया माइनस नहीं प्लस क्योंकि जेड़ा करंट जंक्शन पे पहुंच रहा उन्ना ही बाहर जा रहा बाहर कितना जा रहा I2 प्लस I1 सॉरी I1 प्लस I2 अच्छा हुण आ जी लूप है ना तो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਲੋਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ HL ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਲੂਪ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ है ना तो I3 इतना जा रहा है ना ਇਹਦੇ ਚ I1 ਜਾ ਰਿਹਾ अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ I2 करंट है इतना जा रहा है तो आ तक घूमन वाला तरीका ट्रैवर्स करन दा हुण अगर आप A तो B गए हैं फॉल -30 I1 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ हैं राइज है ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ हैं फॉल है 40 ਤੇ I3 अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ फॉल है फॉल है राइज है
है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ i3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ तो आ इक्वेशन बन गई -30 i1 प्लस 40 माइनस 40 एक आ इक्वेशन बन गई ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ I1 सॉल्व करके दोनों I1 I2 भी निकल सकता। Two students A and B calculate the charge flowing through a circuit. Flowing through a circuit A concludes that 300 coulomb of charge flows in 1 minute. B concludes that 3.125 into 10 raised by 19 electrons flow in 1 second. If the current measured in the circuit is 5 ampere, then the correct calculation is done now. की लगा समझ तेनों? एक ने कूलम में चार्ज, एक ने चार्ज निकाल दिया और Q बाय करंट, एक ने करंट बता दिया। चार्ज 1 मिनट में, एक ने इलेक्ट्रॉन की टर्म में दिया, एक ने कूलम का बता दिया और हमें टोटल करंट दिया है। ए ने क्या हुआ फॉर ए जो चार्ज है 300 कूलम इन 1 मिनट, 300 कूलम ओवर 60 सेकंड, 5 एम्पियर है ना। जेड़ा बी स्टूडेंट है उन्हें की क्या 1 सेकंड तो ओदा करंट है NQ बाय टाइम। Q की जगह E कर देंगे ना। हुन सॉरी 1.1 सेकंड। तो देखो दोनों का करंट सेम है क्योंकि टोटल करंट भी जेड़ा 5 एम्पीयर ही है। तो पहले दी तो रीडिंग ठीक है, दूसरे दी देखो
ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਲਈ 15th Two sources of equal EMF are connected in series. The combination is in turn connected to an external resistance R. The internal resistance of two sources are R1 and R2. R2 is greater than R1. If the potential difference across the source of initial internal resistance R2 is 0, then R is equal to तो आ देखो E1 R1 E2 हाँ R2 greater than सर्किट च करंट ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ टोटल EMF over total ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है हैं R2 ਦੇ इधर देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਉੱਤਰ पोटेंशियल डिफरेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਰਸ ਲਈ EMF into resistance. देखो आ ਜਿਹੜੀ रेजिस्टेंस है इस सेल ਦਾ ਪਾਰਟ है ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਈਐਮਐਫ ਆਪਾਂ ਅਗਰ E ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ V ਕੀ ਹੁੰਦਾ IR है ना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ है ना तो ये डिस्चार्ज हो रहा तो ਇਹਦਾ V ਕੀ है तो करंट का सर्किट वाला ही है और कितना देता पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब E2 is equal to तो I की वैल्यू पुट कर देने ਆਪਾਂ R1 R2 की terms में difference किधे क्रॉस है capital R निकाल सर E1 और E2 बराबर है अच्छा बराबर है हाँ, फिर बन जाएंगे अलग तो E2 आ गया E1 प्लस E2 R2 बन गई तो क्योंकि E2 तो ਇਹਦਾ मतलब आ भी E है ये 2 ही है E कटेंगे 0 is 0 नहीं 1 is equal to